Okay, I hope all of you can hear me. First of all, I would like to thank our college education department, which provide us one of the most common online learning tool all around the world in the form of our YouTube channel. So, after thanking our college education department, I want to especially mention about technical support which was provided by Arslan Iqbal. He belongs to KMC Workshop Boys Degree College, and moral support which was provided by my principal, Professor Parveen Loni from Ronak Islam Government College of Women, Haradar, Karachi. So you can see my affiliation here and education credential. I also would like to discuss about okay, with the help of this video, I would also like to communicate to student that dear student, please know that your teachers are not enjoying this time away from classroom. We think about you. We hope you are safe and healthy. We miss your stories. We miss your smiles. We miss you, and we miss our classrooms with the energy you bring. So love from all of your teachers. Okay. After this, I would like to discuss about this presentation. What I am going to today. My today's teaching presentation will be with the sole objective to introduce the subject of accounting to the become student having their intermediate in non-commerce field, pre-medical or pre-engineering, and only mostly a definition of accounting will be discussed here. One more thing I will also like to mention that our mode of communication will be mixed Urdu as well as English, although I will try to balance both as I used to do in our traditional college lecture, and also I will be sharing unedited version of this video, so please bear pause and delay due to shifting from PowerPoint slides as well as from whiteboard feature. So let's begin our session. So सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं सब्जेक्ट मैटर से. What is the subject matter? You should be well aware about the subject matter of that particular subject. कि subject matter क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट का. सब्जेक्ट मैटर को क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन द मटेरियल विच वी हैव टू स्टडी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कि जिस सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट की पहली क्लास में अगर आपको ये बता दिया जाए कि भाई इस सब्जेक्ट में हमें ये पढ़ना है, तो वो सब्जेक्ट की बाउंड्री लाइन स्कोप समहाउ आपको आइडिया दे रहा होगा कि हाँ ये हमारी चीजें हैं जो कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़नी है, और ये किसी दूसरे सब्जेक्ट में. ऑफ कोर्स रियल लाइफ सिचुएशन में तमाम सब्जेक्ट इंटीग्रेट होते हैं, बट दिस विल बी योर फाइनल ईयर डिस्कशन कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जब इस किस्म की बात कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेट कैसे करना होता है. लेकिन यहाँ पर अभी मैं हम कर रहे हैं अकाउंटिंग की बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उस अकाउंटिंग पे बेसिक्स आने से पहले मैं अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर से पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ योर अर्लियर एजुकेशन कि डू यू नो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर स्टडीड सब्जेक्ट. जैसे कि सब्जेक्ट मैटर तो मैंने बता दिया कि वो कौन सी चीजें हैं कि जो कि हमें उस सब्जेक्ट में पढ़नी है. तो एनी ऑफ यू, if I ask you what is the subject matter of, let's say I'll start from chemistry. सही है. इररिस्पेक्टिव के आप मेडिकल के बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते थे, तो डिफरेंट स्टूडेंट ट्रेडिशनल क्लास में डिफरेंट आंसर देते थे. कुछ कहते थे सर हम एक्शन रिएक्शन कर रहे होते हैं, सर कुछ कहते थे हम एक्सपेरिमेंट कर पढ़ रहे होते हैं. तो ये डिफरेंट आंसर्स आएंगे, बट अगेन मैं आपको अगेन स्पेसिफिक कर दूं, मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं फंक्शंस की बात नहीं कर रहा. सही है. मैं टूल्स की बात या मेथड्स की बात नहीं कर रहा. हर सब्जेक्ट के टूल्स अलग होते हैं, डेफिनेशन कुछ और होती है, सब्जेक्ट मैटर कुछ और होता है, स्कोप कुछ और होता है. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट मैटर की. तो डू यू थिंक रिएक्शन रिएक्शन ही पढ़ते हैं, कुछ और नहीं पढ़ रहे होते हैं, और भी दूसरी चीजें पढ़ सकते होंगे. ठीक है. क्या हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन भी की जा रही होती हैं. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ केमिस्ट्री, सो वन ऑफ द, आई एम श्योर कि अगर ट्रेडिशनल क्लास होती तो कोई ना कोई स्टूडेंट केमिकल्स कह देता. तो यस, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ केमिस्ट्री इज केमिकल्स. तो केमिकल्स वगैरह के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो केमिकल्स वाली बात, एक मिनट. ओके. So what is the subject matter of chemistry? Okay, let me change the color of my so that it will be more visible. Yes. So what is the subject matter of chemistry? Okay, line here. Okay, draw pencil. Let's do this. So, of course, so chemicals. Similarly, if I ask you what is the subject matter of biology,
सो अगेन एक वर्ड, एक फ्रेज चाहिए मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे फ्रेज चाहिए। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बायोलॉजी? तो डिफरेंट आंसर, कुछ कहेंगे सर हम ऑपरेशंस भी देख रहे होते हैं, हड्डियों को पढ़ रहे होते हैं, स्किन को कर रहे होते हैं, पेन को डिस्कस कर रहे होते हैं, सही है। तो मैं इसको कहूंगा एट वेरी बेसिक लेवल हम बायोलॉजी में सिर्फ लाइफ को स्टडी करते हैं। सर अब पौधों की या जानवरों की, दोनों हैं। तो देयर वर टू बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड zoology। तो बॉटनी में क्या पढ़ रहे होते थे? बॉटनी के अंदर हम ओके बॉटनी के अंदर हम क्या पढ़ रहे होते थे? बॉटनी के अंदर हम लाइफ ऑफ प्लांट स्टडी कर रहे होते थे। तो लाइफ ऑफ प्लांट, लाइफ ऑफ प्लांट में, ठीक है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ zoology? इट विल बी लाइफ ऑफ एनिमल्स, सही है। अब वो मेरीन लाइफ हो या सही है अर्थ बेस्ड हो, मैमल्स हो, हम उसकी बात नहीं करें। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिक्स? ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नो द बेसिक आइडिया। भाई मैटर पढ़ते थे, लिक्विड होता था, गैस होता था, और एक और चीज होती थी, क्या होती थी? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डिस्कशन के लिए मैं ये चीजें रहने दे रहा हूँ, बताओ। लेकिन ऑफ कोर्स अभी डिस्कशन नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सो आई होप ये वाले के सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या है। अब अगर हम लेट्स क्लोज दिस, ओके। अब अगर हम सब्जेक्ट मैटर के बाद आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग या बिजनेस? पहले बिजनेस की बात करते हैं, कॉमर्स या बिजनेस के पॉइंट से बात करते हैं। सो यस, हियर इट इज। So what is the subject matter of business? What you think? What will be the subject matter of business? कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं। मैं अभी यहाँ पर बिजनेस और कॉमर्स की क्लासिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम अब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये बीकॉम वाले स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के नाम से किसी भी लेक्चर में कोई ना कोई टीचर आपको जरूर शेयर करेगा। सो कैन यू थिंक, जो सुन रहे हैं उनके से रिक्वेस्ट कि अपने तौर पे सोचें। जिस तरह फिजिक्स के लिए मैटर था, केमिस्ट्री के लिए केमिकल्स था, बायोलॉजी के लिए लाइफ था, बोटनी के लिए प्लांट्स थे, जोलॉजी के लिए एनिमल्स थे, तो इस तरीके से इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस, तो आपको क्या लगता है बिजनेस में क्या पढ़ते हैं? तो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट आंसर देंगे, जिसमें से मैं डायरेक्टली इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूं, तो इसीलिए मैं डिस्कशन बेस्ड डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो उनमें से एक ले लेता हूं कि सर हम इसमें प्रॉफिट पढ़ते हैं। तो मैं कहूंगा सिर्फ प्रॉफिट वर्ड नहीं होगा, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन क्या है? मैं सब्जेक्ट मैटर की बात, एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, नफा कमाने की नीयत से जो भी आप कर रहे होंगे वो आपका कारोबार कहलाएगा, ठीक है। सो हर वो अमल जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको नफा मिल रहा हो, तो वो देखा जाए तो बिजनेस की बेसिक डेफिनेशन में आ रहा होता है। अब वो अलग बात है कि कुछ लोग अपने आप को बिजी करने के लिए सही ये जॉब कर रहे होते हैं, सैलरी एम्प्लॉयमेंट वगैरह वाली बात हो रही होती है। मैं अगेन उस डिस्कशन की तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं जो एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा हूँ 85 to 90% के बिजनेस के अंदर हर उस एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें प्रॉफिट, हर उस एक्टिविटी को डिस्कस किया जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट करना। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस क्या होगा? प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटी। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड को अवॉइड कर रहा हूँ अब क्योंकि हैंड राइटिंग के इश्यूज आएंगे, दैट्स व्हाई। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मार्केटिंग? आप डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, ओके। एक और चीज जो रह गई उसको डिस्कस कर लेते हैं, बिजनेस। बिजनेस के अब डिफरेंट सब्जेक्ट है। बीकॉम में आप इनरोल्ड हुए तो बीकॉम पार्ट 1 में आपने 6 सब्जेक्ट्स पढ़े, बीकॉम पार्ट 2 में आपके 6-7 और सब्जेक्ट्स आएंगे। तो हर सब्जेक्ट का एक डिफरेंट पर्पस होगा। वी आर हियर राइट नाउ फॉर वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स, लेकिन ऑफ कोर्स मैं अकाउंटिंग पे मूव करूंगा। लेकिन दूसरे हर अकाउंटिंग बिजनेस में बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं। इफ आई आस्क यू मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या करना होता है? एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाई जा रही होती है, सेलिब्रिटीज को इंडोर्स किस तरीके के लिए, उनकी हायरिंग किस तरीके से हो रही होगी, so ये ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन किस तरीके से की जा सकती है। तो इस तरीके से डिफरेंट इश्यू है कि क्यों लोग आईफोन, एप्पल और सैमसंग की लड़ाई एक अरसे से पिछले 2 डिकेड से चलती आ रही है, ठीक है। तो विच वन इज बेटर, इस तरीके की बातें मार्केटिंग में डिस्कस कर सकते हैं कि ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर क्या होता है, सही है। और देखा जाए नीड बेस्ड, अगर इस तरह की दूसरी एग्जांपल मार्केटिंग में, लेकिन मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। मैं आ जाता हूँ अकाउंटिंग के सब्जेक्ट मैटर पे। तो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग? मैंने बिजनेस का सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया, क्या था? एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, नफा कमाने की नियत से जो एक्टिविटी की जाएगी वो प्रॉफिट होगा। बट अगर मैं अपार्ट फ्रॉम
बिजनेस बिजनेस में नफा कमाने के लिए बहुत से काम होते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं, एचआर एचआर एक फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से। किस बंदे को क्या काम किस बंदे से क्या काम लेना है, बंदों की हायरिंग कैसे करनी है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, वो भी बिजनेस का एक फंक्शन है। बिजनेस में लीडरशिप के लिहाज से कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि अपने बंदों से काम किस तरीके से करवाएं एज अ लीडर। बिजनेस में मोटिवेशन पॉइंट ऑफ से डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं कि बंदे अगर काम नहीं करना चाह रहे तो उनको मोटिवेट कैसे करें। तो बिजनेस के डिफरेंट एरियाज हैं, और ये सारे एरियाज, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, मैनेजमेंट है, इमर्जिंग फील्ड्स की बात करते हैं तो सप्लाई चेन से रिलेटेड डिफरेंट इश्यू है कि कस्टमर तक सामान किस तरीके से पहुंचाना है। वेयर हाउस रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं कि वेयर हाउस के अंदर आप देखा जाए तो स्टॉकिंग किस तरीके से कर रहे होंगे। ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर फाइलिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं। तो बिजनेस को जब हम पढ़ रहे होंगे तो बिजनेस इज अ वास्ट टर्म, बहुत से सब फंक्शंस है। बिजनेस के उन तमाम सब फंक्शंस को एज अ सेपरेट आपके बीकॉम के कोर्स में डिजाइन किया गया है। तो यस, इसका मतलब अगर फैक्ट्री का ओनर चक्कर लगा के ये देख रहा है कि भाई आप लोग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, सही है, नजर रख रहा है अपने बंदों के ऊपर, अपने सबऑर्डिनेट्स पर, कि भाई ये काम तुम्हें दिया था, इसकी डेडलाइन ये है, तो ये बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी तो है, लेकिन क्या इसकी अकाउंटिंग होगी? नहीं, इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। तो अकाउंटिंग में हमें क्या पढ़ना होता है? लेट्स कम बैक टू अकाउंटिंग सब्जेक्ट मैटर। मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। देखें, अब मैं सब्जेक्ट मैटर अकाउंटिंग का भी बताया नहीं है। आई एम गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग मैं पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है, इफ आई आस्क यू के डेफिनेशन क्या होती है और सब्जेक्ट मैटर में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट मैटर में सिर्फ उन चीजों को डिस्कस किया जा रहा होता है जो कि हमने उस सब्जेक्ट में पढ़नी होती है। डेफिनेशन के अंदर अपार्ट फ्रॉम अ गुड डेफिनेशन मींस कि उसमें फंक्शंस भी हो, ऑब्जेक्टिव्स भी हो, सब्जेक्ट मैटर भी हो, ऑल एस्पेक्ट कवर कर रहा हो उस एरिया के लिहाज से। इवन इफ आई आस्क टू डिफाइन डेफिनेशन, आ सेंटेंस व्हिच एक्सप्लेन एनीथिंग, डेफिनेशन की भी डेफिनेशन कुछ ना कुछ तो है ना, कि डेफिनेशन को डिफाइन करें। तो डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा सेंटेंस जो कि उस बात को पूरे वे में एक्सप्लेन करे। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में इसमें से तीन चीजें बोल्ड नजर आ रही होंगी। एक सिस्टमेटिक वाली बात, ठीक है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक मनी। तो बेसिकली मैं कहूंगा व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर बेसिकली, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर है दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन। सही है। अच्छा, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं कारोबारी लेन देन के मामलात। सही है। ओके, इग्नोर करें, हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैं उर्दू में लिखने की को अवॉइड कर रहा हूँ। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन से मुराद कारोबारी लेन देन के मामलात, वो तमाम एक्टिविटी जिसमें लेन देन इन्वॉल्व होगा वो हम बिजनेस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसी एक्टिविटी कारोबार की, बिजनेस की, जिसमें किसी किस्म का लेन देन नहीं हो रहा, तो वो बिजनेस में तो डिस्कस किया जा सकता है लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। तो चलें एक एग्जांपल देते हैं कि इवेंट्स क्या हो सकते हैं बिजनेस बेस्ड। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन है, लेकिन स्टूडेंट्स इनिशियल स्टेज पे क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं बिजनेस इवेंट्स और बिजनेस ट्रांजेक्शन को मिक्स कर देते हैं। हर बिजनेस इवेंट में जरूरी नहीं है लेन देन इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस ग्रो कर रहा था, आपने अपने बिजनेस के लिए एक असिस्टेंट हायर किया और 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, 3 लोगों, ओके, 3 लोगों का, 4-5 लोगों का इंटरव्यू लिया, इसमें से 3 लोगों को ऑफर लेटर दी कि भाई अगले दिन काम पे आ जाना। तो इंटरव्यू लेना, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट फॉर एनी स्पेसिफिक जॉब, ये एक प्रॉपर तरीका है रिक्रूटिंग के नाम से या सिलेक्शन के नाम से। एचआर रिलेटेड एक फंक्शन है, ये आप उसमें मैनेजमेंट में जरूर पढ़ेंगे। तो बेस्ट बंदा कैसे हायर किया जाता है, तो ये बिजनेस रिलेटेड इश्यू तो है, लेकिन इसको हम लेन देन नहीं कह सकते। सर हमने ऑफर लेटर उसको दिया तो सही, भाई उसको ऑफर की कि आ जाना, तो क्या ऑफर देने का मतलब वो कल से काम पर नहीं आएगा तो क्या पैसे देने? नहीं। तो जब तक लेन देन इन्वॉल्व ना हो तब तक वो बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्निकली क्लासिफाई नहीं होगी, वो इवेंट रहेगा। चलें सर, इसी को एग्जांपल को थोड़ा सा एनहांस करते हैं। उससे वो चीज पसंद आ, सॉरी, उसे ऑफर लेटर जॉब समझ में आए, उसने ज्वाइन कर दिया नेक्स्ट वीक, 1 महीना हो गया, अब आप सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी की अकाउंटिंग होगी। इसका मतलब काम लेने की अकाउंटिंग नहीं होगी, सैलरी देने की अकाउंटिंग होगी। आप ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई ये करके आओ, हाँ, अगर उसको ऑर्डर दिया कि भाई ये पेमेंट तुम सप्लायर को कर दो, ये पेमेंट कस्टमर से कलेक्ट करके आ जाओ, तो ऑफ कोर्स जो कस्टमर सप्लाई से रिलेटेड पैसों का लेन देन है वो अकाउंटिंग में आएगा, लेकिन हर चीज अकाउंटिंग में नहीं आएगी। सो ओके, अकाउंटिंग के लिए इस जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी, इस एक्सप्लेनेशन का पर्पस क्या था? उस एक्सप्लेनेशन का पर्पस ये था कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट शुड बी इन टर्म ऑफ मनी, वो रुपए पैसे में होने चाहिए। अब रुपए पैसे में अगर आप मेजर ही नहीं कर सकते किसी इवेंट को, तो उसकी अकाउंटिंग आप नहीं करेंगे। अब रुपए पैसे में दो तरीकों से इन्वॉल्व हो सकता है।
हो सकता है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, हो सकता है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। सो कैश में है या क्रेडिट में है, आप उन दोनों को डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। कंट्रोल एल, ओके एक मिनट, ओके इसको अवॉइड करते हैं। अगेन मैंने वापस कोशिश की। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कैश के साथ साथ नकद और उधार की बात कर रहा था। तो नकद और उधार दोनों सूरतों में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती है। इसके एग्जांपल को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि नकद और उधार किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिजनेस। सपोज करें आप एक शॉप पर कोई चीज खरीदने के लिए गए, आपने वो चीज बाई की, पसंद आ गई, उसको पैक किया और पैक करके पेमेंट दुकानदार को दे दी और आप चलते बन गए, ठीक है। तो उस शॉपकीपर के लिए बिजनेस एक्टिविटी है, या उस शॉपकीपर के लिए बिजनेस एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसने सामान बेचा और पैसे आए। इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? जब डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस, लेकिन अभी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। सो पैसों का लेन देन इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर पैसों का लेन देन किस फॉर्म में इन्वॉल्व हुआ? कैश में। क्यों? क्योंकि आपने चीज पेड करवाई और उसको पैसे दे दिए। अब आ जाते हैं क्रेडिट। सपोज कर आपको वो चीज आई और आपने पे करवाई और चलते बंद दिए, तो क्या दुकानदार जाने देगा? नहीं। सही है। आपने उसे कहा भाई माम, वो दुकानदार, वो शॉपकीपर जो बिजनेस ट्रेडर था, वो आपके मामू या चाचा का रिश्तेदार था, और उस रिलेशनशिप की बेस पे, या दोस्त था, ठीक है, जो भी है, आपका दूर का रिलेटिव था या दोस्त था, आपने ये कह दिया कि भाई पैसे अब्बू से ले लेना है, मामू से ले लेना या चाचा से ले लेना। सही है। तो उसने हाँ ठीक है बोला, मैं उससे ले लूंगा। तो शॉपकीपर के लिए देखा जाए तो क्या कैश इन्वॉल्व हुआ? नहीं। उस शॉपकीपर के लिए कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उसने उधार में कुछ ना कुछ इवेंट किया, तो यस। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में एज अ मैनेजर आपको ये एज एन अकाउंटेंट, सॉरी, एज एन अकाउंटेंट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने बिजनेस रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उसमें मॉनेटरी फैक्टर क्या है, कैश में इन्वॉल्व हो रहा है या क्रेडिट में इन्वॉल्व हो सकता है, नकद में हो सकता है, उधार में हो। उसको अकाउंटिंग, कैश की एक्टिविटीज कैसे डेबिट क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट एक्टिविटीज कैसे करते हैं, इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर दूसरी इस किस्म की वीडियोस आएंगी तो उसमें ये चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी हम बिल्कुल वेरी बेसिक्स लेवल पे बात कर रहे हैं। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी, जिसमें कैश भी हो सकता है और वो क्रेडिट भी हो सकता है। अब आ जाते हैं वापस, ये सिस्टमेटिक पर बोल्ड किया। अभी तक मैंने सिर्फ बोल्ड चीजें की, प्रॉपर डेफिनेशन पे नहीं है। देखिए अकाउंटिंग में हर चीज का एक सिस्टम होता है और आपने वो सिस्टम फॉलो करना है। अब वो सिस्टम क्या हो सकता है? वो सिस्टम ये भी हो सकता है, देखिए एग्जांपल लेते हैं पहले। सिस्टम, आप सबको एक सिस्टम का आइडिया है, ऑल्दो पाकिस्तान में वो आइडिया नहीं फॉलो नहीं किया जाता, और वो क्या है कि लाल पे रुकना है और ग्रीन पे चलना है। ये एक सिस्टम बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया ताकि इस सिस्टम को फॉलो करके प्रॉब्लम कम से कम हो, एक्सीडेंट कम से कम हो। तो हर एक सिस्टम का एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग का भी एक प्रॉपर सिस्टम है। अब वो प्रॉपर सिस्टम क्या है? वो पूरा अकाउंटिंग के कोर्स जब पढ़ेंगे तो पूरी अकाउंटिंग साइकिल आपके सामने आएगी, तो आइडिया हो जाएगा। मैं सिर्फ अभी आपके सामने यही कहूंगा कि ये पूरा फैक्टर टेक्निकली क्या कहलाता है? अकाउंटिंग साइकिल का फैक्टर कहलाता है। ये अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स हैं। तो पहले सिस्टमेटिक पर आते हैं। एग्जाम्पल, एक अकाउंटिंग क्यों करते हैं इस पे बात करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली करने के लिए मेन पर्पस आपका यही होता है कि देखें बिजनेस क्यों करते थे, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं भाई, प्रॉफिट के लिए। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आप कैसे मालूम करेंगे? जाहिर सी बात है, उसके लिए ये देखना होगा कि आपने क्या क्या लिखा है और क्या क्या नहीं लिखा। जितनी चीजें हैं एक्टिविटीज, उनका प्रॉपर डेबिट क्रेडिट आएगा तो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। सो हर चीज को लिखने का एक प्रॉपर, तो अकाउंटिंग क्यों कर रहे होते हैं? हमें जब लिखा हुआ होगा तभी मालूम होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है। अब अगर आप अपनी मर्जी चलाएंगे, नहीं मैंने प्रॉफिट बनाने का जो प्रॉपर अकाउंटिंग का तरीका है वो फॉलो नहीं करें, कुछ भी लिख दें, तो क्या कोई दूसरा आपकी बात मानेगा? ऑफ कोर्स नहीं मानेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करें एफबीआर, आपको, आप कहते हैं कि भाई मुझे पूरा प्रॉफिट हुआ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है। बैंक के पास गए तो बैंक के पास आप क्या जाके ये कह रहे होते हो कि भाई मुझे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है लेकिन मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे लोन चाहिए। तो क्या बैंक वाले आपका लोन ऐसे ही अप्रूव कर देंगे? नहीं, वो आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे। वो कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं? अकाउंटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिवली दो मेन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इंट्रोडक्टरी लेवल पे दो हैं, बेसिकली तो ये 4 से 5 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पे डिस्कस करूंगा कि दो स्टेटमेंट तो बहुत मस्त हैं, और वो विच आर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट जिसका अब नाम रिवाइज हो चुका है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और बैलेंस शीट जिसका नाम अब रिवाइज हो चुका है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं कहूंगा कि अभी प्रोफेशनली तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यूज किया जाता है, लेकिन इंट्रोडक्टरी लेवल पे आप इसको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कर सकते हैं। तो जब एडवांस अकाउंटिंग वाली बातें आएंगी तो उस वक्त हम इस तरह की टर्म्स को फॉलो करेंगे। सो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग,
सॉरी सिस्टमेटिक के वर्ड पर मैं था। तो सिस्टमेटिक के वर्ड में मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि देखा जाए तो यस, हर चीज़ को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। अब आपको बैंक वाले जो आप रिपोर्ट जमा कराएँगे उस लोन की, तो वो लोन कब अप्रूव करेगा, वो देखेगा कि बिज़नेस को प्रॉफ़िट हुआ है, लॉस हुआ है क्या, और क्या ये लोन पे करने की एबिलिटी रखता है, नहीं रखता। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक टॉपिक है, उसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा। इनकम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कौन-कौन लोग देख रहे होते हैं? तो उसमें एक है गवर्नमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हुआ और आप अपने दोस्तों को बताएँगे तो वो मान लेंगे, लेकिन क्या गवर्नमेंट मान लेगी? सर हम गवर्नमेंट को क्यों बताएँ? भाई गवर्नमेंट को आपका बिज़नेस अगर रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। टैक्स देने के लिए आपको ये बताना होगा कि बिज़नेस को प्रॉफ़िट हुआ है या बिज़नेस को लॉस हुआ है। अगर आप कह रहे हैं 2 लाख का प्रॉफ़िट हुआ है तो इनकम टैक्स ऑफ़िसर क्या आपकी बात मान लेगा? नहीं, वो बोलेगा कि आप दिखाएँ अपने फाइनेंशियल्स, अपने रिपोर्ट्स दिखाएँ, वो उसे चेक करेंगे। अकाउंटेंट कभी ज़िंदगी में इनकम टैक्स ऑफ़िसर से नहीं मिला होगा। इसके बावजूद अकाउंटेंट का किया हुआ काम इनकम टैक्स ऑफिसर को समझ में आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि अकाउंटेंट ने उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाए हैं, जिस सिस्टम को फॉलो करते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर ने अकाउंटिंग पढ़ी है। तो आप भी वही सिस्टम आपके सामने एक्सपोज होगा जब पूरी अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होगी, तब आपको आइडिया होगा कि हाँ, ये इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है, ये ऐसे बनाते हैं। और ये बनाने के बाद यानी मैं अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इस तरीके से बनती है और बनाने का तरीका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो दैट मीन्स हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करें आपका प्राइस बॉन्ड लगा या किसी वजह से आपको विरासत में कुछ पैसे मिले, हार्डशिप के तौर पे कोई जमीन वगैरह मिली। आप कहते हैं या कुछ पैसे मिले, आप कहते हैं मुझे उसको इन्वेस्ट करना है। भाई इन्वेस्ट कहाँ करना है? किसी कंपनी में, स्टॉक मार्केट में। सर इस वक्त हालात खराब है, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कोई मसला नहीं है, किसी ना किसी तरीके से तो आप सोचेंगे ना। अगर आप ये सोचते नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इस वक्त मार्केट बड़ी डाउन है तो सबकी प्राइसेस लो हुई है और मेरा अभी 1 या 2 महीने का पर्पज नहीं है, मेरा 10 या 12 साल का पर्पज है। तो हो सकता है टेम्परेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसेस डिक्लाइन हुई है, लेकिन 2 3 4 साल के बाद ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अभी प्राइसेस लो हैं तो हमें बाय कर लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये सब बाय करते हैं। आप कहते हैं मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाती हूँ, स्टॉक की किस कंपनी के शेयर बाय करेंगे? तो जाहिर सी बात आप एक जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर होगा कि सर हम उस कंपनी के शेयर बाय करेंगे जिस कंपनी ने पास्ट में प्रॉफिट शो किया होगा। तो प्रॉफिट कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको इस कंपनी ए में प्रॉफिट है या कंपनी बी में प्रॉफिट है? फॉर एग्जांपल पीएसयू का प्रॉफिट ज्यादा है या निशात मिल्स का प्रॉफिट ज्यादा है या दीवान शुगर्स का ज्यादा है या एमसीवी का ज्यादा है? तो ये प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपको उन कंपनीज की शेयर प्राइस के साथ साथ ये भी देखना होगा कि पास्ट में उनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है, उन्हें पिछले 4 5 सालों में क्या हुआ। तो कंपनियां इस तरीके से प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, जिसमें से 2 का नाम मैंने आपके लिए मेंशन किया था, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। तो सिस्टमैटिक में मैंने 3 बातें कहीं, उनको तेज़ी से सम अप कर दूँ और वो क्या थी कि सिस्टम फ़ॉलो करना है, ट्रैफिक वाली एग्ज़ाम्पल थी, लाल पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है। तो इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाने का, डेबिट एंड क्रेडिट फ़ॉलो करने का प्रॉपर एक तरीका होता है, वो फ़ॉलो करेंगे तो जिससे बेनिफिशियरीज़ चाहे गवर्नमेंट हो, बैंक हो या इन्वेस्टर हो। बैंक लोन देने के लिए, गवर्नमेंट टैक्स के लिए और इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो आपको सिस्टमेटिक वे में प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासिफिकेशन करनी होगी। ओके, सो मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे अब मैं आता हूँ। मैंने 3 चीजें डिस्कस की। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट शुड बी इन टर्म ऑफ मनी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। दोनों सूरतों में हो सकता है। कारोबारी लेन देन के मामला हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। सिस्टमेटिक वे में 4 काम करने। अब इन 4 कामों में से मैं आपको यहाँ पर ओके मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे रिक्लासिफाई करता हूँ। और वो रिक्लासिफिकेशन क्या है? और वो रिक्लासिफिकेशन ये है, मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए होगा इसमें। ये अगर हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन एक कैटेगरी है, ये वाला पोर्शन एक कैटेगरी है। अब दोनों पोर्शन में से यानी रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एक कैटेगरी है और रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बेसिकली क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। ठीक है, मैं जस्ट व्हाइट बोर्ड का टच देना चाह रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इस चीज को रहने दिया। और दूसरा समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग ये कहलाता है रिपोर्टिंग। सही है। ओके, बुक कीपिंग और रिपोर्टिंग 2 अलग फंक्शंस के तौर पे आप क्लासिफाई करना चाहें कर सकते हैं।
देखिए अकाउंटिंग में क्लरिकल लेवल जो काम होता है ना कि ट्रांजेक्शन भी उन ट्रांजेक्शन्स को उनकी जगह पर लिख दिया, तो यानी आप बुक कीपिंग कर रहे हैं। अब बुक कीपिंग के अंदर जो 2 कैटेगरी है, एक है रिकॉर्डिंग और दूसरी है क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम जर्नल जर्नल बना रहे होते हैं, लेजर बना रहे होते हैं, सॉरी जर्नल जर्नल बना रहे होते हैं, परचेज जर्नल बना रहे होते हैं, सेल जर्नल बना रहे होते हैं, कैश बुक बना रहे होते हैं। इसमें बड़ी-बड़ी बातें मैं डिस्कस कर लूँगा, प्रॉपर ये जब सब टॉपिक्स आएँगे तो उस वक़्त डिटेल में बात होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बिज़नेस में हमने 2 क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी कि मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। नकद में भी हो सकता है उधार, तो बिज़नेस में कैश जितनी ट्रांज़ैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने का एक सेपरेट तरीका है। कैश बुक, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसी तरीके से बिज़नेस में उधार की जो ट्रांज़ैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने का एक सेपरेट तरीका है स्पेशल जर्नल के नाम से सेल्स जर्नल, परचेज़ जर्नल, सेल्स डे बुक या परचेज़ डे बुक, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज़ रिटर्न जर्नल के नाम से कुछ बुक और बुक्स बनाई जाती हैं। यानी कैश अलग और क्रेडिट अलग। इसके अलावा भी कुछ ऐसी ट्रांज़ैक्शन होती हैं कि जो या तो कैश या क्रेडिट में तो होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मिक्स होती हैं। उनके लिए हम जर्नल जर्नल यूज़ करते हैं, ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन इंट्रोडक्टरी लेवल पे आप हर ट्रांज़ैक्शन को जर्नल जर्नल में लिख सकते हैं क्योंकि ये जर्नल जी से है। पहला जर्नल जी है, दूसरा जर्नल जे है। तो एक ऐसा रजिस्टर जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो, वो जर्नल जर्नल है। जर्नल जर्नल के नाम से टॉपिक आएगा, उसकी वीडियो आएगी तो उस वक़्त हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एक होता है स्पेशल जर्नल। अब स्पेशल जर्नल की पूरी लिस्ट है। खरीदा उधार पे और आइडियली स्पेशल जर्नल मोस्टली सेलेक्टेड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। कैश है तो कैश बुक, पेटी कैश बुक है एक इसी तरीके से। सेल्स पे काम कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल्स है तो कैश सेल्स जर्नल या सेल्स डे बुक। परचेज पे काम कर रहे हैं तो क्रेडिट परचेज पे काम कर रहे हैं तो परचेज जर्नल या परचेज। तो इन सबको लिखने का एक तरीका और ये क्लियर कर रहा होता है। लेकिन ड्यू टू ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री इस वक्त देखा जाए तो हर काम कितना हो गया। मिसाल के तौर पर आपको बैंक की फीस जमा करवानी होती है अगर, या बिल वगैरह, तो समटाइम बैंक वाली डिपॉजिट स्लिप्स होती है कि ब्लू इसकी है, पिंक इसकी है, रेड इसकी है। तो हर चीज कंप्यूटराइज हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता बुक कीपिंग वाला काम मैनुअल अकाउंटिंग के बजाय ये कंप्यूटराइज हो गया है। वन क्लिक पे ऑटोमेटिकली ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्लरिकल लेवल जॉब है बुक कीपिंग वाली। मैं ऑटोमेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स पे, जॉब्स खत्म होने पे बात नहीं करना चाह रहा, वो हम सेपरेट कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग दोनों। अच्छा, क्लासिफाइंग में क्या करना होता है, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना। भाई बैंक में पैसे मौजूद है, एक कस्टमर को आपने उधार पे सामान बेचा, उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ पर, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद है, सेल्स जर्नल में। उसने उसमें वापस कर दिया कुछ सामान, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद है, सेल्स रिटर्न जर्नल में। उसने कुछ पेमेंट की, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद है, कैश बुक में। तो इसका मतलब जब रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो एक ही तरह का इवेंट, एक ही तरह की कंसंट्रेटेड सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन तीन चार अलग अलग जर्नल्स में या तीन चार अलग अलग बुक्स में होगी। उस बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें लेजर बनाना होता है और ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो क्लासिफिकेशन में दो काम किए जाते हैं, लेजर और ट्रायल बैलेंस। ये क्या है, जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है कि पहले रिकॉर्ड करना है और देन क्लासिफाई करना है। ओवरऑल ये दोनों स्टेप्स बुक कीपिंग के क्लासिफाई होते हैं। देन दूसरा मेन फंक्शन रिपोर्टिंग। देखा जाए मेन अकाउंटेंट का काम ये होता है समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। समराइजिंग क्या होता है, एडजस्टमेंट का प्रोसेस, ये आइडेंटिफाई करना। ये हम डिटेल में एडजस्टमेंट का टॉपिक जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। समराइजिंग में हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई कितने, मिसाल के तौर पे मैंने सैलरी पे की 40,000, मेरा बैलेंस शो कर रहा है सैलरी का 40,000, जो कि ट्रायल बैलेंस से मालूम पड़ेगा। अभी आपको ट्रायल बैलेंस नहीं आया, जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस 40,000 आया, लेकिन आपके पास 3,000 वाला तो टोटल पेरोल आपका 3,000 बनता था। जस्ट एग्जांपल है, डॉलर्स पर्सपेक्टिव में आप समझ सकते हैं कि एक महीने का आपका पेरोल 3,000 का है, चलें इसको 4 लाख कर लें। ठीक है। आपके पास सैलरी कितनी नजर आ रही है, 40,000 4 लाख। और आपके पास बंदे कितने, बंदों की सैलरियां कितने, दो बंदे काम करते हैं 15,000 वाले, लेट्स से 30,000 रुपए आपकी सैलरी बननी चाहिए। तो सैलरी कितनी बनी, 3,60,000। लेकिन ट्रायल बैलेंस में मालूम पड़ा कि लिखा हुआ कितना है, 40 लाख, तो 4 लाख। तो 40,000 एक्स्ट्रा दिए तो मालूम पड़ा किसी एक ने लोन दिया हुआ था या उसको एडवांस पेमेंट की थी। 25 का लोन दिया हुआ था एक को, जो 2-3 महीने बाद देगा, और 15,000 रुपए का उसको एडवांस दिया हुआ अगले महीने की सैलरी से एडजस्ट होगा। तो इस किस्म की चीजें जब हम एडजस्ट करते हैं तो ये समराइजिंग की कैटेगरी में आ रहा होता है। इसको एनालाइजिंग भी कुछ लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं। समरी करना, आइडेंटिफाई करना, एक्चुअल इनकम और एक्चुअल एक्सपेंस तक पहुंचना। तो रिपोर्टिंग का ये पहला स्टेप है। जबकि अकाउंटिंग साइकिल का जब रिपोर्टिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है। मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट में पैसे आपके 50,000 है, बैंक वालों से पूछा तो उन्होंने बताया भाई आपके तो अकाउंट में 42,000 है। तो रीजन क्या हुआ, आपने एक चेक इश्यू किया था
वो बंदा बैंक में कैश करवाने नहीं आया था, सही है? या एक चेक आपने डिपॉजिट करवाया था, वो बैंक में बाउंस हो गया। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से पूरा टॉपिक है, उसमें ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की जाती है। जस्ट टू गिव यू आइडिया कि समराइजिंग में रिपोर्टिंग पर्पस के लिहाज से हम बिज़नेस की सम अप करते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंस क्या है और एक्चुअल इनकम क्या है। सिमिलरली अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करता हूँ, तो इंटरप्रिटेशन यानी नतीजा निकालना कि भाई पूरा साल जो भी हमने किया है, उस पूरा साल करने के बाद बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है या बिज़नेस को लॉस हो रहा है। तो इंटरप्रेटिंग के अंदर बेसिकली रिपोर्टिंग का फाइनल जो स्टेप है, उसमें हमें ये देखना होता है कि बिजनेस इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडियली तो मैं अभी 4 नाम लूँगा, 5वां डिस्प्यूटेड है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसको 4 आप कह सकते हैं। पहला इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये इसमें सिर्फ बोलना और लिखे हुए नहीं है, ये सेपरेट टॉपिक में जब आएँगे तो उस वक़्त ये रिपीट होंगे। अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिक सिर्फ देख रहे हैं कि अकाउंटिंग साइकिल में इसका स्ट्रक्चर है। तो इंटरप्रेटिंग में हमें करना क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट बताता है और बैलेंस शीट ये बताता है कि बिजनेस के पास क्या-क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा होता है कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लोन वापस मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। इस किस्म की चीजें हम आइडिया का ले रहे होते हैं। तो मैं अब तक ऑल्दो मेरे पास कुछ और स्लाइड्स थी, लेकिन मैंने आधे घंटे का सोचा था एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मुझे लग रहा था ये 10-15 मिनट में मैं डेफिनेशन खत्म कर दूंगा और देन उसके बाद इसको क्लियर ऑल करें और देन उसके बाद मैं अगली स्लाइड्स पे चले जाऊंगा या आधे घंटे में, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग का फीचर आधे घंटे के सब्जेक्ट मैटर और अकाउंटिंग मुझे कॉस्ट और ये डिस्कस करना था, इसका टाइम नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ से। सो आई होप यू हैव लाइक माई लेक्चर। किसी किस्म की क्वेरी है तो आप गूगल साइट पे जाके ये चीजें डिस्क्लोज कर सकते हैं, ये आपके सामने मौजूद है। तो वंस अगेन थैंक यू अवर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिन्होंने यूट्यूब का चैनल प्रोवाइड किया ताकि हम अपनी वीडियो प्रॉपर्ली शेयर कर सकें। सो मोहम्मद बाय फ्रॉम मोहम्मद मुबीन फ्रॉम रौनक इस्लाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराची। ठीक है, सो लेट्स दिस